اب جو درس ہوگا اس کے اندر یہ واضح کیا جائے گا کہ کسی شخص پر غسل فرض ہو گیا اور ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا. یہ جو دورانیہ ہے، اس دورانیہ میں کیا چیزیں اس کے لیے جائز ہیں اور کیا چیزیں اس کے لیے جائز نہیں ہے. آج ہمارا یہ عنوان ہے. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر غسل فرض ہو گیا اور آپ نے ابھی تک غسل نہیں کیا، مسجد کے اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے. اور داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، مسجد کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ مسجد کا کہلاتا ہے عین مسجد، اور ایک مسجد کا حصہ کہلاتا ہے فناء مسجد. یہ مسجد کے دو حصے ہیں. آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ قادری مسجد میں عین مسجد کون ہے اور فناء مسجد کون سی جگہ ہے؟ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ عین مسجد ہے جہاں باقاعدہ نماز ہوتی ہے. اس کے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو وضو خانہ ہے. یہ سب کہلائے گا فناء مسجد. جب آپ مسجد میں ان ہوتے ہیں تو مسجد کی دو حصے ہوتے ہیں. ایک وہ حصہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز ہوتی ہے، وہ عین مسجد کہلاتا ہے. اور وہ حصہ جہاں بیت الخلاء ہے، وضو خانہ ہے، یہ سب فناء مسجد کہلاتے ہیں. جس پر غسل فرض ہو گیا فناء مسجد میں تو آ سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن عین مسجد میں نہیں آ سکتا. عین مسجد میں اس کا آنا جائز نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ آتا ہے جان بوجھ کر تو گناہ گار ہوگا. یہ مسئلہ مرد کے لیے بھی ہے اور یہی مسئلہ عورت کے لیے بھی ہے. عورت تو ہمارے عام طور پر مساجد میں نہیں جاتی. عورت کے لیے مسائل آتے ہیں جب وہ عمرے کے لیے جاتی ہے. اب عمرے کے لیے گئی اور ماہواری اسٹارٹ ہو گئی، جو عورت کو ہر مہینے بلیڈنگ ہوتی ہے. اب اگر ماہواری اسٹارٹ ہو چکی تو وہ مسجد حرام میں نہیں جا سکتی. اور مسجد حرام کے بھی آپ دیکھیں، ایک بیرونی حصہ ہے، ایک اندرونی حصہ ہے. اندرونی حصہ وہ ہے کہ باقاعدہ دروازے لگے ہوئے ہیں، اب ان دروازوں سے اندر جاتے ہیں. اصل مسجد وہ ہے. باہر کے حصے پر بھی ماربل لگا ہوا ہے، بڑا صاف ستھرا ماربل ہے، کثیر افراد باہر بھی بیٹھتے ہیں. وہ عین مسجد نہیں ہے بلکہ فناء مسجد ہے. اور ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر غسل فرض ہو گیا تو فناء مسجد میں جانا جائز ہے، لیکن عین مسجد میں جانا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص پر غسل فرض ہے، اب وہ کعبہ شریف کا طواف بھی نہیں کر سکتا. ظاہر بات ہے جب کعبہ شریف کا طواف کرے گا تو اسے مسجد حرام میں داخل ہونا ہے. مسجد حرام میں داخل ہونا یہ اس کے لیے حرام ہے. پھر کعبہ شریف کا جو طواف ہوتا ہے وہ طہارت اور پاکی کی حالت میں ہوتا ہے. اب وہ پاک نہیں تھا اور کعبہ شریف کا طواف کیا، اس کا مطلب ہے کہ ڈبل جرم کیا ہے. ایک جرم مسجد میں ان ہونے کا، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ کعبہ شریف کا وہ طواف کرتا ہے. اگر عورت بھی ناپاک ہے، جیسے ماہواری کا مسئلہ ہے، تو وہ بھی مسجد حرام میں بھی داخل نہیں ہوگی اور نہ ہی کعبہ شریف کا طواف کر سکتی ہے. اسی طریقے سے جس پر غسل فرض ہے وہ قرآن عظیم اور فرقان حمید کو چھو نہیں سکتا. یعنی قرآن کو اگر چھوتا ہے تو قرآن کو چھونا، مس کرنا، اپنا جسم لگانا، اپنا ہاتھ لگانا، یہ اس کے لیے ناجائز ہے. غسل فرض ہونے کی صورت میں قرآن کو پکڑنا، قرآن کو چھونا، یہ علماء نے ناجائز لکھا ہے. اسی طریقے سے
اگر غسل فرض ہو گیا تو وہ قرآن کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا. جیسے کوئی صورت اسے یاد ہے، سورہ بقرہ یاد ہے، سورہ یاسین یاد ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ غسل فرض ہے، میں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا. بغیر ہاتھ لگائے چونکہ مجھے سورہ یاسین یاد ہے، میں سورہ یاسین پڑھ لوں. اب اگر وہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کا سورہ یاسین پڑھنا جائز نہیں بلکہ ناجائز ہے. اسی طریقے سے اگر وہ لکھتا ہے اور لکھتے لکھتے قرآن کی کوئی آیت آ گئی تو اب قرآن کی آیت کو لکھ نہیں سکتا. قرآن کی آیت کو لکھنا بھی ناجائز ہے. یہ مسائل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اسے اب عبارت سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں. جس کو نہانے کی ضرورت ہو، یعنی اس پر غسل فرض ہے اور ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا، اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا اور قرآن مجید چھونا یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا، یہ سب حرام ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے جو مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی وضاحت سن لیجیے گا. قرآن عظیم و فرقان حمید پر عام طور پر ہم غلاف چراتے ہیں. وہ ایسا غلاف ہوتا ہے جس کو آپ جزدان بھی کہتے ہیں، غلاف بھی کہتے ہیں. گویا ایک طریقے سے سمجھ لیں ایک تھیلی ہوتی ہے جس میں آپ قرآن رکھتے ہیں، لیکن لفظ ہم تھیلی استعمال نہیں کرتے. ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے غلاف چرا ہوا ہے یا جزدان چرا ہوا ہے، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو در حقیقت وہ بھی ایک تھیلی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، آپ اس سے قرآن نکالتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی غلاف کے اندر اور جزدان کے اندر قرآن کو آپ رکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو کہ قرآن ہمیشہ اس میں نہیں رہتا، اس سے نکلتا ہے اور پھر اس میں آپ رکھ دیتے ہیں. اگر وہ جزدان چرا ہوا ہے اور وہ غلاف چرا ہوا ہے، یا پھر دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ دیں کہ تھیلی میں قرآن ہے، تو تھیلی کے اوپر سے اگر آپ قرآن کو پکڑتے ہیں، اگرچہ آپ کا وضو نہیں ہے، اگرچہ آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے، یہ جائز ہے، اب ناجائز نہیں ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری بات ہے آپ کا ہاتھ قرآن کو نہیں لگا، آپ کا ہاتھ لگا جزدان کو، اور جزدان یہ قرآن سے متصل ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ڈائریکٹ قرآن کو نہیں پکڑا بلکہ آپ نے جزدان کو پکڑا ہے. اس لیے اگر وضو نہیں تب بھی جائز ہے، غسل فرض ہو گیا ہے اب بھی آپ پکڑ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس رومال ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ رومال ہے، اور یہ ایسا رومال ہے جو میرے جسم سے منسلک نہیں ہے، بالکل الگ ہے، جدا. اگر کسی شخص پر غسل فرض ہے یا اسی طریقے سے بے وضو ہے، اگر وہ رومال صاف ستھرا ہے، کیونکہ عام طور پر ہمارے رومال سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم پسینہ وغیرہ صاف کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے. اگر آپ کا رومال یا وہ کپڑا وہ صاف ستھرا ہے، اب اگرچہ آپ کا وضو نہیں ہے، اگرچہ آپ پر غسل فرض ہے، آپ اس رومال سے قرآن شریف کو پکڑ سکتے ہیں، یہ جائز ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اس صورت میں جائز ہوگا، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر اسمیل نہ ہو، اور عام طور پر اسمیل ہوتی ہے، اللہ حفاظت کرے. اس لیے کہ قرآن کا ہم جتنا ادب کریں گے نا اتنی برکتیں ملے گی، یہ بات ذہن میں رکھے گا. بے ادبوں کو برکتیں نہیں ملا کرتے، ہم بڑا ادب کرتے ہیں. ورنہ ہم نے مسجد حرام میں تو عجیب عجیب سین دیکھے، کوئی تکیہ بنا رہا ہے، اچھا کوئی قرآن رکھتا ہے اس کے بالکل برابر میں اس سے ملا ہوا جوتے رکھ دیتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا بے ادبی
अल्लाह की बारगाह से महरूमी का सबब है, और अदब करना ये सबब है अल्लाह की बारगाह से बरकत के हुसूल का। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मशाइख, हमारे अकाबिर, हमारे उलमा हर वक्त ये कहते हैं कि बा अदब बा नसीब, और बे अदब बद नसीब, उसके नसीब ही खराब है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर वो कपड़ा ऐसा है जो आपके जिस्म से मुत्तसिल है और आपका वजू नहीं है, या पर गुसल फर्ज है, तो अब इस सूरत में उस कपड़े से आप कुरान को नहीं पकड़ सकते। मैं इसकी मिसाल बता रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी आस्तीन है, अब किसी की आस्तीन बड़ी हो और वो आस्तीन को निकाले और कहे कि चलो मैं आस्तीन से पकड़ लेता हूं, चूंकि ये आस्तीन आपसे मुंसलिक है, जो आपका हुक्म है वही आस्तीन का हुक्म है। नतीजा क्या निकला, जब आपको छूना जायज नहीं तो आस्तीन के जरिए छूना भी जायज नहीं। यहां तक कि एक और बात ध्यान में रखिएगा, आपने चादर ओढ़ी हुई है, और चादर अभी आपने ओढ़ी हुई है, सर्दी है, चादर ओढ़ी हुई है, चादर ओढ़ी हुई इसी हालत में, तवज्जो रखिएगा, चादर ओढ़ी हुई है और इसी हालत में चादर का एक कोना जो था, उस कोने से आपने कुरान को पकड़ा, कहा ठीक है मेरा वजू नहीं है जनाब, मुझ पर गुसल फर्ज है, मैं कुरान को थोड़ी छू रहा हूं, मैं अपनी चादर से पकड़ रहा हूं। चूंकि चादर आपकी है और आपके जिस्म से मिली हुई है, इसलिए अब उस चादर से भी आप कुरान को नहीं पकड़ सकते। इसके पकड़ने का तरीका यह होगा कि वो जो ओढ़ने वाली चादर है ना, चादर, उसको आप अपने से अलग कर दें, अलग कर ले, जैसे अभी रुमाल अलग किया हुआ है, इस तरीके से आप अलग कर ले। अलग करने के बाद अब अगर आप उस चादर से कुरान को पकड़ना चाहते हैं, अगरचे आपका वजू नहीं है, अगरचे आप पर गुस्ल फर्ज है, ये जायज है। और यहां यह बात भी ध्यान में रखिएगा, एक और मसला क्लियर कर दो, ऐसे ही हमारे दामन होते हैं, क्योंकि लोग बराबर मसले को समझते नहीं है, कहते हैं मैं छू थोड़ी रहा हूं, वो दामन से पकड़ लेते हैं। दामन का ताल्लुक आपसे है, जैसे आप छू नहीं सकते इस तरीके से आप अपने दामन से भी छू नहीं सकते, ये नाजायज होगा अगर वुदू नहीं है, इसी तरीके से अगर गुस्ल फर्ज हो गया। एक और बात ध्यान में रखिएगा, यह मसला भी मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। आप जब कुरान शरीफ खोलते हैं तो कुरान शरीफ में ऐसा मकाम जहां आयतें लिखी हुई है, उसे छूना तो नाजायज है, लेकिन कुरान के साइड में वाइट सा पेपर होता है, वहां तो आयत नहीं लिखी हुई। आपके ذہنوں में सवाल आएगा ना कि जनाब कुरान को छू नहीं सकते, लेकिन कुरान का जो पेपर है इसकी एक बॉर्डर होती है, बॉर्डर से अब बाहर निकलें तो फिर कागज होगा साफ क्लियर, जिस पर कुरानी आयत के अल्फाज नहीं लिखे हुए थे, बल्कि अल्फाज तो वो जो बॉर्डर बनी हुई है ना उसके अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते। अब अगर कोई ये कहने लगे कि जनाब मैं कुरान को नहीं छू रहा, मैं तो वो साइड से उस बॉर्डर को छू रहा हूं, याद रखेगा ये छूना भी नाजायज है, ये जायज नहीं है। जो कुरान का हुक्म होगा वही उसकी बॉर्डर का हुक्म है, यानी कुरान को छूना जायज नहीं तो फिर बॉर्डर को छूना भी जायज नहीं, और वो जो अगला हिस्सा है उसको छूना भी जायज नहीं। इसी तरीके से आपके ذہنوں में सवाल आएगा कि कुरान की बाइंडिंग, चूंकि कुरान तो बाइंडिंग किया हुआ होता है, कुरान की जो बाइंडिंग है वो तो गत्ता है, वो कुरान थोड़ी है, वो तो एक गत्ता है। कुरान तो अंदर में है ना, जो अरबी में लिखा हुआ है, तो वो जो बाइंडिंग है जिसको आप गत्ता कहते हैं, अब ذہنوں में सवाल आएगा क्या उसको छूना जायज है? नहीं, उसे भी छूना जायज नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जहां कुरान लिखा उसे भी नहीं छू सकते, कुरान के साइड की जो जगह है अगर जो उस पर आयतें नहीं लिखी हुई उसको छूना भी जायज नहीं, उसकी जो बाइंडिंग है उसको छूना भी जायज नहीं है। अब ये मसाइल जो मैंने अभी पेश किए, इसको इबारत के जरिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, और इबारत स्क्रीन पर आप मुलाहिदा करें। अगर कुरान अजीम जुज़दान में हो तो जुज़दान पर आत लगाने में हर्ज नहीं, अभी क्लियर कर दिया, जायज है। यूं ही रुमाल वगैरह से किसी ऐसे कपड़े से पकड़ना जो ना अपना ताबे हो ना कुरान मजीद का, तो जायज है। ये सारी वजाहत में कर चुका।
जैसे आस्तीन हमारे ताबे और बाइडिंग कुरान के ताबे। अच्छा, कुर्ते की आस्तीन, दुपट्टे की आंचल, ये औरतों के लिए। कुर्ते की आस्तीन, दुपट्टे की आंचल से यहां तक के चादर का एक कोना उसके मुंडे पर यानी कांधे पर है, दूसरे कोने से छूना हराम है कि ये सब उसके ताबे हैं, ये सब हमारे ताबे। यहां एक और मसला मेरे जहन में आया, मैं इसे भी क्लियर कर दूं। आपका वजू नहीं है, अल अमान वल हफीज कुरान गिर गया, अल्लाह हिफाजत करे, बहुत बड़ी मुकद्दस किताब है, हमारी जानें कुर्बान, हमारी रूहें कुर्बान। कुरान तो बस समझ ले के खत्म, अब हम दूसरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। ये फाइनल पैगाम है कुरान अदीम व फुरकान हमीद। लेकिन इत्तेफाक हुआ, जाहिर बात है इरादतन तो कोई भी मुसलमान फेंक ही नहीं सकता, और जानबूझकर अगर बेहुरमती के लिए कुरान को फेंकता है तो काफिर हो जाएगा, मुसलमान रहेगा ही नहीं, ये बात ध्यान में रखे। तो जाहिर बात है हमसे जब कुरान अल अमान वल हफीज गिर जाता है तो इरादतन नहीं होता, बस कभी कभार ऐसे इत्तेफाक हो जाते हैं, अल्लाह उन इत्तेफाक से भी हमें बचाए। तो अब कुरान अगर गिर गया, आपका वजू नहीं है, तो आदमी सोचो विचार में पड़ जाता है, मैं क्या करूं, मेरा वजू नहीं है। तो अब यहां ध्यान में रखिएगा, अगर कभी ऐसी सूरत हो जाए अल अमान वल हफीज, आपका वजू नहीं, कुरान गिर गया, अब वजू करने नहीं जाना आपने, अब आप फौरन कुरान को उठाए, इसलिए कि ये जो आप ताखिर कर रहे हैं ये कुरान की बेअदबी है। अगरचे आपका वजू नहीं है, आपके जहनों में आएगा वजू नहीं, फिर भी मैंने कुरान को तो छू लिया, ये तो जायज नहीं था, लेकिन यहां अल्लाह आपका मुआखजा नहीं करेगा, इसलिए कि आपके पेश नजर क्या है, कुरान का तकद्दुस, कुरान अज़ीम व फुरकान हमीद की हुर्मत। अच्छा, अब इसके बाद जिस पर गुस्ल फर्द हो, इसमें सब आ गए, जुम्बी यानी एतलाम वाली सूरत है, या वो औरतें जो हाइदा हैं यानी मेंसेस जो आते हैं। अच्छा, निफास वाली औरत। अब जो मैं बातें बता रहा हूं इन सब के लिए बताई जा रही है, वो ये है कि कुरान तो वो पढ़ नहीं सकती और पढ़ भी नहीं सकता जब गुस्ल फर्द है, लेकिन बाज ऐसे कलिमात हैं कुरानी, और आप तिलावत से नहीं पढ़ते, किसी और मकसद के तहत पढ़ते हैं, तो अब जायज़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप पर गुस्ल फर्द है या औरत हाइदा है, वो पढ़ना चाहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है कुरान, लेकिन वो इसलिए पढ़ना चाहती है ताकि बरकतें मिले, तबरुक के लिए पढ़ रही है, तिलावत के नियत से नहीं पढ़ रही। तो अब इस सूरत में अगरचे गुस्ल फर्द हो गया, तबरुक की नियत से जिस पर गुस्ल फर्द है वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ सकता है और पढ़ सकती है, मर्द भी पढ़ सकता है, औरत भी पढ़ सकती है। इसी तरीके से अल्फाज कुरान के हैं, लेकिन वो कलिमाते तशक्कुर हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना। जैसे अल्लाह की नेमत पर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है ये, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूं। तो ये जो आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, है तो कुरानी अल्फाज ना, सूरह फातिहा में तो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, लेकिन आप तिलावत की नियत से नहीं पढ़ रहे, बल्कि अल्लाह की बारगाह का शुक्र अदा करने के लिए पढ़ रहे, तो ये पढ़ना भी जायज़ है शुक्र की नियत से। इसी तरीके से कोई मुसीबत आ जाए, तो मुसीबत में इस्लाम कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब क्या है? मतलब है कि बेशक हम अल्लाह के हैं, अब अल्लाह के तो अल्लाह की बारगाह में ही जाना है, यानी आप सब्र कर रहे हैं, कोई मुसीबत आ गई, कोई तकलीफ आ गई, और ये बात ध्यान में रखेगा, ये सिर्फ किसी के इंतकाल पर नहीं पढ़ा जाता, कोई भी मुसीबत हो, कोई भी आफत आए तो इस्लाम कहता है ये पढ़ लो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब क्या होता है कि आप इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मौला हम सब तेरे हैं और तेरी बारगाह में लौटना है, बस हमने सब्र करना है। तो गोया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के आप इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मौला हम सब्र कर रहे हैं तेरे फजल से, तेरी तौफीक से। लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्या है? कुरान है, सूरह बकरा के अंदर है। तो अब आप ये पढ़ सकते हैं
क्योंकि आप तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ रहे, बल्कि इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो इसलिए आपने पढ़ा है। तो ये पढ़ना भी जायज़ है। हाइदा औरत भी पढ़ सकती है, निफास वाली औरत भी पढ़ सकती है, हर वो शख्स जिस पर गुस्ल फर्ज है इसे पढ़ सकता है, जबकि कुरानी अल्फाज और कलिमात है। इसी तरीके से बाद ऐसी सूरतें हैं जिसमें अल्लाह की सना है, जैसे सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह हशर की आखिरी आयत वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। ये वो कलिमात हैं जो कलिमात सना है, अल्लाह के तारीफ़ी और तौसीफ़ी कलिमात है ये कुरान। लेकिन चूंकि आप सना की नीयत से पढ़ते हैं तो फिर ये पढ़ना जायज़ होगा, अगरचे आप पर गुस्ल फर्द है। हाइदा औरत भी पढ़ सकती है और वो औरत जो निफास वाली है वो भी इसे पढ़ सकती है। अब ये जो मसाइल मैंने आपके सामने पेश किए, इसे स्क्रीन पर आप देखें, मैं इबारत लिखी है, इबारत आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगर कुरान शरीफ की आयत कुरान की नीयत से ना पढ़ी तो हर्ज नहीं। जैसे तबरुक के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, या शुक्र के लिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या मुसीबत और परेशानी में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी, या सना की नीयत से सूरह फातिहा या आयतुल कुर्सी, या सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, या ऐसी ही कोई आयत पढ़ी तो कुछ हर्ज नहीं, जबकि कुरान पढ़ने की नीयत ना हो। अगर कुरान पढ़ने की नीयत है तो अब ये जायज़ नहीं है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर किसी शख्स का वुजू नहीं है तो सवाल ये पैदा होता है वो कुरान को छू सकता है? नहीं छू सकता। बगैर वुजू कुरान को नहीं छू सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में वादे कर दिया, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। तो जो वुजू नहीं रखता वो कुरान को छू नहीं सकता। लेकिन कब कब छू सकता है उसकी वजाहत मैंने कर दी, जैसे किसी कपड़े के जरिए, रुमाल के जरिए पकड़ ले तो अब कोई मसला नहीं। लेकिन अगर उसका वुजू नहीं है, अब बेवुजू की बात हो रही है, गुस्ल फर्द हो गया उसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ वुजू नहीं है बागुसल, उसका वुजू नहीं है, तो याद रखिएगा कि वो कुरान को छू तो नहीं सकता, जबानी पढ़ सकता है। जबानी पढ़े तो जायज़ है, अफजल तो ये कि वुजू कर ले, लेकिन अगर पढ़ता है तो जायज़ है। अच्छा, इसी तरीके से मोबाइल के अंदर कुरान है, अब मोबाइल में देख के पढ़ता है, मोबाइल में लिखा हुआ था स्क्रीन पर, तो फिर भी जायज़ है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप कुरान को छुएंगे तो फिर वुजू होना ज़रूरी है। और ये बात ध्यान में रखिएगा, ये हुक्म कुरान का भी है, अगर कुरान का तर्जुमा लिखा हुआ है तो उसके भी यही अहकाम है। बाद मरतबा कुरान का तर्जुमा फारसी में होता है, अच्छा कभी इंग्लिश में होता है, हमारे यहाँ आमतौर पर कुरान का तर्जुमा होता है उर्दू में, और उर्दू में सबसे बेहतरीन तर्जुमा कंजुल ईमान, ईमान का खजाना, जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का है। अगर तर्जुमा है तो भी वही अहकाम है जो अहकाम उसके मुकद्दस अरबी कलिमात के हैं। अच्छा, अब ये इबारत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। बेवुजू को कुरान मजीद या उसकी किसी आयत का छूना हराम है। बेछुए देखकर या जबानी पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। कुरान का तर्जुमा फारसी या उर्दू या किसी और जबान में हो, उसके भी छूने और पढ़ने में कुरान मजीद ही का सा हुक्म है। इसी तरीके से अगर बेवुजू है या फिर गुस्ल फर्द है, खा वो हाइदा हो या निफास वाली खातून हो, अगर वो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहती है तो पढ़े, दुआएं करना चाहती है तो दुआएं भी कर सकती है। अब ये इबारत जो है ना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। दुरूद शरीफ और दुआओं के पढ़ने में उन्हें हर्ज नहीं, मगर बेहतर यह है कि वुजू या कुल्ली करके पढ़े। कुरान मजीद देखने में इन सब पर कुछ हर्ज नहीं, अगरचे हर्फ पर नजर पड़े
اور الفاظ سمجھ میں آ جائے اور خیال میں پڑھتے جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں. یعنی اگر غسل بھی فرض ہے یا بے وضو بھی ہے لیکن قرآن جیسے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اب وہ خاتون ہے یا مرد ہے، وہ پڑھتی نہیں ہے، خالی وہ لفظوں کو تصور میں لیتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تمام مسائل جو اہم تھے اور ضروری تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت نے احکام جس طریقے سے ہمیں عطا فرمائے ہو بہو اسی طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.